Okay, in this video, I will solve some problems and related to whatever we have studied so far in machine learning. ये इनफैक्ट एक पुराना एग्जाम है. मैं कोशिश करूँगा कि इसके तमाम सवाल मिड टर्म है, तमाम क्वेश्चंस इसके मैं आपके सामने सॉल्व करूँ. Okay, question number 1. Give short answers to the following questions. A computer program, number 1. The computer program is set to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P if its performance on T as measured by P improves with experience E. This is basically one of the definitions of machine learning. Okay, you have a task and you have some performance measure P, and with experience, if your performance is improving, this means कि computer program learn कर रहा है, learning हो रही है. Okay, so we feed a learning algorithm a lot of historical weather data, and इसका task ये है कि it has to learn to predict the weather. What should be a reasonable choice for P? Performance measure क्या होनी चाहिए इस केस में? So it can be there can be multiple different answers, but one of the things is which makes very much sense. मतलब आप कैसे बताएंगे कि वेदर ठीक प्रिडिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या परफॉर्मेंस मेजर होनी चाहिए? नंबर ऑफ डेज. The font is too big. So number I will use different color. So number of days या percentage of days for which the weather was predicted correctly. This can be one measure. ठीक है, परफॉर्मेंस ऐसे मेजर होगी कि कितनी एक्यूरेसी कितनी है. अगर 100 दिनों की वेदर को प्रेडिक्ट किया गया है तो 100 में से कितने दिन जो है वो आपकी प्रेडिक्शन करेक्ट थी. सो दिस कैन बी वन परफॉर्मेंस मेजर, एंड दिस वाज इनफ आंसर. Okay, part 2. The amount of rain that falls in a day is usually measured in either millimeters or inches. Suppose you use a learning algorithm to predict how much rain will fall tomorrow. Would you treat this as a classification or a regression problem? तो इसमें देखिए आउटपुट वेरिएबल क्या है. आउटपुट वेरिएबल ये है how much rain will fall tomorrow. How much, ठीक है. तो it's not a discrete decision, it's something in millimeters. ठीक है, तो ये एक continuous आउटपुट वेरिएबल है. So this is a regression problem. ठीक है. Okay, suppose you are working on stock market prediction. You want to predict whether or not a certain company will win a patent infringement lawsuit by training on data of companies that had to defend against similar lawsuits. Okay, would you treat this as a classification or a regression problem? तो आप देखना चाहते हैं कि वो infringement का जो केस चल रहा है वो जीतेगी कंपनी या नहीं जीतेगी. So it's a binary classification problem, क्योंकि डिसीजन आपका yes और no के दरमियान में होगा. Okay, suppose we have a regression problem of predicting number of speeding tickets X from information about driver age. The number of speeding tickets Y from information about driver age. यानी आपका जो इनपुट वेरिएबल है वो ड्राइवर एज है ट्रेनिंग डाटा में, यानी वो आपका फीचर है, और आपकी आउटपुट है नंबर ऑफ स्पीडिंग टिकट्स. नंबर ऑफ स्पीडिंग टिकट्स का मतलब ये है कि जो ट्रैफिक वायलेशन की ओवर स्पीडिंग की वजह से टिकट्स मिलते हैं वो प्रिडिक्ट करने हैं. ठीक है, और ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है. आपने लीनियर रिग्रेशन फिट इन की और आपने ये फाइंड आउट किया कि थीटा 0 5.57 है और थीटा 1 जो है वो -0.65 है. तो अब आप क्या टिकट्स प्रिडिक्ट करेंगे फॉर अ 24-year-old. ठीक है, सो इसको करने के लिए let's use pencil. So your hypothesis was, because it was linear hypothesis and you had only one variable, so your hypothesis was actually theta 0 plus theta 1 x. ठीक है, और थीटा 0 की वैल्यू जो है it is already given to you as 5.57
5 7 और थीटा 1 की वैल्यू आपको दी गई है -0.065। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है टाइम्स x। ठीक है, x है आपका ड्राइवर एज। अब एक नया इंस्टेंस आपके पास आया है कि आप बताना चाहते हैं कि व्हाट विल बी माय प्रेडिक्टेड वैल्यू इफ एज ऑफ द पर्सन इज 24 ईयर्स। ठीक है, तो x की जगह 24 डालें यहाँ पर और वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। सो यू विल गेट 24 ओवर हेयर। इसको कंप्यूट करें एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज कि आपने जब हाइपोथेसिस फंक्शन बनाया इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो उसको कन्वेक्स किया, क्यों किया? तो इसकी रीजन ये थी कि आपका जब नॉन कन्वेक्स फंक्शन होता है वो उसमें क्या होता है, लोकल मिनिमा होते हैं। ठीक है, लाइक दिस is an example of a non-convex function. So you have this local minima, probably this local minima and one single global minima. तो आपका जब फंक्शन non-convex होगा तो there are high chances के when you will apply gradient descent, तो gradient descent will stuck in local minima. ठीक है, so non-convex functions have local minima. Non-convex functions have local minima and gradient descent can stuck there. ठीक है, इसलिए उसको कन्वेक्स कर दिया ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ओके जी, नंबर 6, you are training a classification model with logistic regression. Which of the following statements are true? Check all those which are true. Okay, number 1, introducing regularization to the model always results in equal or better performance on examples not in training set. ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने रेगुलराइजेशन बहुत बुरी अप्लाई कर दी है, लैम्डा बहुत बड़ा रख दिया है, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ जनरली नॉट ट्रू। हमेशा रेगुलराइजेशन से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं और सेम भी नहीं रहेगी, कम भी हो सकती है। अच्छा, नए डाटा के लिए इंट्रोड्यूसिंग रेगुलराइजेशन टू द मॉडल ऑलवेज रिजल्ट्स इन इक्वल और बेटर परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग सेट। ऑन द ट्रेनिंग सेट जो बिहेवियर है उस पर भी यू कैन नॉट से डैट। हमने वो एग्जांपल रेगुलराइजेशन में देखी भी थी जब लैम्डा बड़ा रखने से अंडर फिटिंग हो गई थी और वो ट्रेनिंग डाटा पर भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, ज्यादा फीचर होने से क्या ओवरफिटिंग का चांस कम होता है या बढ़ जाता है? ज्यादा फीचर्स जब भी होंगे वो आपका ओवरफिटिंग का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। Adding a new feature to the model always results in equal or better performance on example not in the training set. फीचर ऐड करने से मे भी फर्क पड़ सकता है और मे भी फर्क ना पड़े, that is not necessary. Okay, some of the problems below are best addressed using a supervised learning algorithms and others with unsupervised learning algorithm. Which of the following would you use supervised learning? Supervised learning कहाँ इस्तेमाल करेंगे? Number 1, examine a large collection of emails that are known to be spam emails to discover if there are subtypes of spam email. ठीक है, तो ये सबटाइप्स, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम है। सो दिस इज ट्रू। टेक अ कलेक्शन ऑफ 1000 essays written on the US economy and find a way to automatically group these essays into small group of essays that are somehow similar or related. 1000 essays हैं, उनको कुछ सिमिलरिटी की बेस पे ग्रुप करना है, ये क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम है। Given historical data of children's ages and height, predict children height as a function of their age. रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम है। ओके जी,
एक और भी है, गिवन 50 आर्टिकल्स रिटन बाय मेल ऑथर्स एंड 50 ऑथर्स आर्टिकल्स रिटन बाय फीमेल ऑथर्स, लर्न टू प्रिडिक्ट द जेंडर ऑफ अ न्यू मैन्युस्क्रिप्ट ऑथर व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑथर इज अननोन। ठीक है, आपके पास मेल ऑथर्स के लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, फीमेल ऑथर्स के लिखे हुए आर्टिकल हैं, क्या आप आर्टिकल को देख के बता सकते हैं कि ये मेल ने लिखा है या फीमेल ने लिखा है? सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन और सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। ओके जी, नंबर 8, सपोज यू रेन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्वाइस। एक दफा आपने रेगुलराइजेशन पैरामीटर लैम्डा को 0 रखा यानी कोई रेगुलराइजेशन नहीं की, और एक दफा आपने लैम्डा को 1 रखा यानी रेगुलराइजेशन अप्लाई की। एक दफा आपको थीटास की वैल्यू मिली 74 पॉइंट समथिंग, थीटा 0, थीटा 1 है 45.05, और दूसरी दफा जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन किया तो थीटास की वैल्यू छोटी है 1.37 और 0.51। अब आपको ये नहीं याद रहा कि आपने वो मिक्स कर दिया कि कौन सी वैल्यूज जो हैं वो लैम्डा 0 के साथ आई थी और कौन सी लैम्डा 1 के साथ आई थी, वो बताएं। तो याद रखें, जब भी रेगुलराइजेशन अप्लाई करेंगे थीटास पेनलाइज होंगे और थीटास की वैल्यू छोटी हुई होगी। इस केस में हमने थीटा 0 पर भी एप्लीकेशन कर दी है प्रॉबेबली, ठीक है, जो कि जनरली नहीं करते। तो ये जो रिड्यूस्ड वैल्यूज हैं ये कॉरस्पॉन्ड करती हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 को, और ये कॉरस्पॉन्ड करती हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 को प्रॉबेबली। नो रेगुलराइजेशन, तो रेगुलराइजेशन करने से वैल्यूज रिड्यूस होंगी। ओके जी, 9th पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेगुलराइजेशंस आर ट्रू? रेगुलराइजेशन आर ट्रू, चेक ऑल दैट अप्लाई। Choosing too large a value of lambda can cause your hypothesis to overfit the data. This can be avoided by reducing lambda. बहुत बड़ा लैम्डा कर देने से ओवरफिटिंग तो हल हो जाती है, अंडरफिटिंग का मसला पैदा हो जाता है। सो ओवरफिटिंग नहीं होती लैम्डा बढ़ाने से। Because logistic regression outputs values between 0 and 1, its range of output values can only be shrunk slightly by regularization anyway. So regularization is generally not helpful for it. सो ये इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, रेगुलराइजेशन रेंज श्रंक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए दिस आल्सो फॉल्स। कंसिडर अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एडिंग रेगुलराइजेशन मे कॉज योर क्लासिफायर टू इनकरेक्टली क्लासिफाई सम ट्रेनिंग एग्जांपल व्हिच इट हैड करेक्टली क्लासिफाइड व्हेन यूजिंग नॉट यूजिंग रेगुलराइजेशन। तो ऐसा मुमकिन है कि जब रेगुलराइजेशन अप्लाई नहीं कर रहा था, कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल पे काम ठीक चल रहा था, आपने रेगुलराइजेशन अप्लाई की, लैम्डा बहुत बड़ा रख दिया, अंडर फिटिंग हो गई, और पहले जिन ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे आपको करेक्ट रिजल्ट्स मिल गए थे वो मिलने भी बंद हो गए। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, दिस पॉसिबल। Using a very large values of lambda cannot hurt the performance of your hypothesis. The only reason we do not set lambda to be large, very large is to avoid numerical problems. नहीं, lambda बहुत बड़ा रखने से underfitting का खदशा हो जाता है, ठीक है, which is so numerical problems या numerical computations को हम avoid नहीं कर रहे, बल्कि lambda large रखना feasible नहीं होता। Last part, इनमें से कौन सा जो फिगर्स हैं वहां पे अंडर फिटिंग हो रही है? तो अगर यहां पे देखें तो ये सॉर्ट ऑफ अंडर फिटिंग की एग्जांपल है, जहां पे ट्रेनिंग डाटा जो है वो इस कर्व से बहुत दूर है। सो यू विल प्रोबेबली हैव लार्ज ट्रेनिंग एरर। सो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट रिजल्ट। सो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये यहां पे एक्चुअली चूंकि कॉस्ट फंक्शन जो दिया हुआ है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का दिया हुआ है, तो दिस शुड हैव बीन लॉजिस्टिक, प्रोबेबली वो पेपर में बाद में ठीक करवा दिया होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कॉस्ट फंक्शन ये है, ठीक है ना। अब आपने ये किया कि आपने के पास दो पैरामीटर्स थे, थीटा 0 और थीटा 1, ठीक है, उन दोनों को पेनलाइज कर दिया, ठीक है। कैसे पेनलाइज किया? पेनलाइज थोड़े डिफरेंट तरीके से किया, जो हमने पढ़ा उसकी निस्बत डिफरेंट तरीके से किया। हमने थीटा 0 को पेनलाइज करने के लिए डिफरेंट लैम्डा इस्तेमाल किया और थीटा 1 को पेनलाइज करने के लिए डिफरेंट थीटा लैम्डा इस्तेमाल किया, दो लैम्डाज इस्तेमाल किए, यानी ताकि कंट्रोल कर सकें। लैम्डा 1 अगर बहुत छोटा होगा तो थीटा 0 पे कम इफेक्ट आएगा, लैम्डा 2 प्रोबेबली बड़ा होगा, थीटा 1 पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। Suppose lambda 1 and lambda 2 are both small but non-zero. In figure below, draw the decision boundary learned by logistic regression. तो होगा क्या, जब lambda 1 और lambda 2 बहुत छोटे हैं तो थीटास की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली इसकी जो लीनियर डिसीजन बाउंड्री है वो यूं कुछ आनी चाहिए थी, ठीक है,
वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद प्रॉब्लली इधर आ जाएगी. सो इट विल ऑलमोस्ट रिमेन द सेम बिकॉज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बहुत छोटे रखे हैं, तो थीटा 1 और थीटा 2 पे इफेक्ट, थीटा 0 और थीटा 1 पे इफेक्ट नहीं आ रहा. अच्छा, अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को दोनों को 0 रख दिया हमने. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन नाउ, स्लाइटली चूंकि थीटा 1 और थीटा 2 को, थीटा 0 और थीटा 1 को जो थोड़ी सी भी पेनल्टी दे रहे थे अब नहीं दे रहे, तो थोड़ी सी ये लाइन ऊपर चली जाएगी, थोड़ी सी ये लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी. नथिंग मच विल हैपन. नाउ सपोज लैम्डा 1 इज सेट टू 0, लैम्डा 1 0 है, लैम्डा 2 जो है इट्स वेरी लार्ज. लैम्डा 2 जब वेरी वेरी लार्ज रखेंगे, लैम्डा 2 से पेनलाइज हो रहा है थीटा 1, सो थीटा 1 की वैल्यू जो है इट विल बिकम ऑलमोस्ट 0. ठीक है, जबकि थीटा 0 अपनी जगह पे कायम रहेगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी हाइपोथेसिस थी, क्योंकि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, तो आपकी हाइपोथेसिस थी g ऑफ थीटा 0 प्लस थीटा 1x, वो बच जाएगी g ऑफ थीटा 0 विच इज अ कांस्टेंट नंबर, लेट्स कॉल इट c. ठीक है, ये आपकी हाइपोथेसिस बच गई और ये आपकी डिसीजन बाउंड्री जो है ना समथिंग लाइक दिस होगी. ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. ठीक है, दैट्स इट. इस सवाल में जब ये एग्जाम में दिया था, बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स आए थे, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव डेटा सेट विद ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल फॉर क्लासिफाइड रिसीव्ड ईमेल्स इनटू स्पैम, फोकस्ड एंड अदर्स. देयर वर 3 फीचर्स, 3 फीचर्स थे और 3 क्लासेस हैं. हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यू विल यूज द मेथड ऑफ 1 वर्सेस ऑल. ठीक है, वो 3 हाइपोथेसिस बनाए और जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो ले लें. हाइपोथेसिस लिखें. इनकी हाइपोथेसिस जो है वो कल मैंने लिखी थी स्लाइड्स में, मैं आपको सोल्यूशन ये दे दूंगा, वो क्योंकि बिल्कुल फ्रेश पढ़ाया है. तो इनकी हाइपोथेसिस ऐसे बनेगी कि पहले आप स्पैम को पॉजिटिव क्लास लेंगे, फोकस्ड और अदर्स को नेगेटिव क्लास ले लेंगे, फिर फोकस्ड को पॉजिटिव क्लास लेंगे, स्पैम और अदर्स को नेगेटिव क्लास ले लेंगे, फिर अदर ईमेल्स को पॉजिटिव क्लास लेंगे, फोकस्ड और स्पैम को नेगेटिव क्लास ले लेंगे, एंड देन यू विल मेक 3 हाइपोथेसिस ऑफ दैट. ओके जी, लास्ट गालिबन ये सवाल है. सपोज वी हैव अ रिग्रेशन प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ स्पीडिंग टिकट्स y फ्रॉम इंफॉर्मेशन अबाउट ड्राइवर एज x. ये आपको ट्रेनिंग डाटा दिया गया है पाइनी क्लासिफिकेशन का. यू वांट टू अप्लाई क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस, वर्क योर सॉल्यूशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एंड शो 1 आइटरेशंस टू फाइंड थीटा. तो इसकी जो क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस हो सकती है वो कुछ ऐसे हो सकती है, इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x प्लस थीटा 2 एक्स स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस लिखनी थी आपने, और इसके बाद आपने ग्रेडियंट डिसेंट रन करना है. अगर पूरा सब थीटास के लिए करना है देन यू हैव टू रन इट फॉर थीटा 0, थीटा 1 एंड थीटा 2. तीनों के लिए रन करना है. और रिमेंबर के एक्स स्क्वायर की ट्रिक क्या करनी है, एक्स स्क्वायर करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट अनदर 1 ओवर हेयर, और इस पूरे कॉलम का आपको स्क्वायर निकालना पड़ता. ठीक है, एंड देन ये रिप्लेस हो जाती, ये बन जाता x1 और ये बन जाता x2. अब ये प्रॉब्लम बन गया लीनियर रिग्रेशन विद 2 वेरिएबल्स. ठीक है, और फिर इसको सॉल्व किया जा सकता था. अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट में मैं ये बोर्ड पे सॉल्व करके आपको दे दूंगा, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना ऑन PDF इज डिफ़िकल्ट. ठीक है जी, तो कुछ एग्जांपल्स हमने कर ली. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताएं कि अगर कोई क्यूरी है तो ज़रूर बताइए.